درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مکالمہ ہم سب کے سامنے پیش کریں. باپا کیا بات ہے, کیسے جھکا جھکا سو رہا؟ اللہ کیا بتاؤں, 5 دن ہو گئے طبیعت خراب دیکھی ہے. کیا ہو رہا؟ سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے اور دل سے بالکل اٹھا نہیں جا رہا ہے. دوائی وائی نہ لی؟ ہاں دوائی لی نہیں. کس سے؟ اونا ہے بچی پھر کر لوٹا بھجرو. ارے باپا اس سے کہا لی, وہ تو جب پھر کر دے گا. ہاں سارے کام چینج ہوتا ہے دوائی. اس کے چکر میں نہ پڑے, انہوں نے کئی بڈے مار دیے. راجا مرنا سب کچھ ہے. نمبر آ جاؤ گا جلدی. اچھا تو پھر کہاں سے لے دوائی؟ ایک ہے گا ڈاکٹر, اچھا ڈاکٹر ہے, ڈگری والا ڈاکٹر ہے. ارے ڈگری کا کیا ہو, ارے کاغذ واغذ سے بنے, وہ پڑھکا ہوا ہے باہر سے. آج تجھے دوائی دلواؤں گا. آرام سے لگ جائے گا. ہاں ہاں آرام لگے گا. آجا ڈاکٹر صاحب دوائی دے دیے پاپا کو. کیا ہو رہا پاپا؟ 15 دن ہو گئی. کیا ہو گیا؟ کیا بتاؤ اللہ, 15 دن ہو گئے. 15 دن سے طبیعت خراب چلی بہت زیادہ. سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے اور اتنی پریشانی ہو رہی ہے بہت زیادہ. جب تجھے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے تو کیوں لے رہا پھر تو سانس؟ کہاں لے گیا؟ مزاق کر رہا پاپا, ویسے مزاق. سانس لینے میں تو بندہ جاؤں گا کیا؟ غصہ ہو رہا, ہم مزاق نہ کر سکتے تھے. غصہ نہ ہو تو اور کیا کروں؟ چل رک جا رک جا رک جا, کیا کام کروا جا رہا میں تیرا. آپ نے لمبی سی رکھوں گا آگے. ارے زور سے کھا. پاپا دوائی کس سے لی رہے تھے نا؟ ارے وہ نہیں ہے اللہ, پھر پاپا پھر کر لوں گا. اچھا ارے کہاں پھنس گیا جا کے, وہ فرضی ڈاکٹر ہے, پڑھا لکھا بھی نہ. ارے ہاں مجھے تو تم بھی فرضی سے لگ رہا. بڑھیا والی دوائی دو, اس کو بڑھیا ایک خوراک میں سیدھا ہو جائے گا, سیدھا کھڑا ہو جائے گا. ارے جا, جتنا بڑا تو ہے نا, جتنی تیری عمر ہے اس سے زیادہ تم نا دوائی کھا لی. ارے روزہ دوائی ایک خوراک میں لگ جائے گا آرام. ارے مرض پھیل رہا, مرض زیادہ پھیل رہا تیرا. اچھا ایک خوراک میں لگ جائے گا آرام. بہترین. چل تجھے بھی دیکھیں گے. کچھ پرہیز ورہیز تو نہ کرنا. ارے انہیں جو ہے چاول اور تلی ہوئی چیزیں مت کھلائیے, اور بیڑی ہوتے کو ہاتھ میں لگا دے بالکل. ٹائم سے کھا لے پاپا دوائی. کیا بات ہے پاپا, اور جھکا جھکا سا ہو رہا تو. ارے کہاں لے گیا تو ڈگری پہ والے ڈاکٹر کے. پاپا اچھا ڈاکٹر ہے وہ. ارے کہیں سے اچھا ڈاکٹر تو ہمارا بھجن تھا. اچھا یہ خوراک کھا کر سکون کی نیند تو آ جائے گی. پاپا چل اس سے بات کریں گے دوبارہ. ارے آپ کیا بات کرو, اسے بالکل آرام تو لگے نا بالکل بھی. تو دوائی لے کے ایک بار دکھا تو دے, کیا پتا تو نے کچھ گڑبڑ کر دی ہو. آجا چل دیکھ لیں. آجا. تو ڈاکٹر صاحب کیا کرا ہے, تو کچھ آرام ہی نہ لگا. ارے تم لوگ کہتے ہیں خوراک میں آرام لگ جائے گا. پاپا بھڑک کیوں رہا, پتا کیا ہوا ہے. تو بڑے کو تو کیا کروں, جب تک تو لمبی لمبی پھینک رہا. رک جا, دوائی دے میں تیری کیا دی تھی میں نے. پاپا دوائی تو صحیح ہے ساری. ارے وہ دھرم کیا کر رہا, کیا کر رہا ہے. ایک دم کھڑا ہو جا, ایسے تو ایسے بنی دوائی دیتا ہوں. اور پرہیز تو کرتے نہیں یہاں آگے سنا. ڈاکٹر صاحب سنو, چھوڑنی پڑے گی کیا؟ بالکل چھوڑنی پڑے. جب تک کہہ رہا تو آرام لگنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب دوائی دو آپ کا دوبارہ, اور اب کے پیڑھی بھی چھوڑوانے کی ذمہ داری ہماری ہے. پر کوئی آرام لگ رہی ہے ان کی دوائی, یہ پیڑھی نہ چھوڑ دے. جب تم ذمہ داری لے رہے ہو خود بخود ایک دم سیدھے ہو جائیں گے. پاپا آپ سے پیڑھی نہیں پینی. ہاں ٹھیک ہے. دوائی دے دو. مجھے دوائی دے رہا ہوں. اچھا لے لیے ٹائم سے. اور اپنی پینی پیڑھی بالکل بھی چکر میں نہ پڑے. چل جا کر آرام سے لیٹ جا.
वाला कितने दिन हो गए कैसे करा। अच्छा डॉक्टर है पापा वो तो। अरे कैसे करा हमने इससे तुम्हारा भजन जीता कम से कम। अच्छा तो तू तो कहीं जाया जाए से हो रहा लग रहा तेरा जल्दी टाइम आने। चल रुक जाए वो सब बाद में देखेंगे उसके पास पुलिस भेज देंगे पहले बड़े डॉक्टर से मिल ले। अरे यार लाला तू तो सही डिग्री वगैरह वाला बताता है बड़ा बता। पापा एमबीबीएस डॉक्टर है क्या हो गया क्या हो जाती तुम। अरे डिग्री ना पापा डिग्री वाला डॉक्टर है सुन चले बात। क्या लगेगा। हाँ आराम लगेगा आपके। आपका आराम लगेगा। हाँ आजा मिल ले डॉक्टर साहब। अच्छा पापा जो बिठाओ थोड़ी देर इंतजार करो बड़े डॉक्टर साहब हैं यहाँ नंबर लगाना पड़ता है बैठ जाओ थोड़ी देर वेट करो पापा जी बैठ जाओ 2 मिनट बैठ जाओ। लल्ला नंबर हम पर लगेगा नहीं। लगेगा पापा अभी मैं पूछ रहा क्या हुआ डॉक्टर साहब। देखिए सर ये बड़े डॉक्टर होते हैं यहाँ नंबर लगकर ही दवाई मिलती है पहले नंबर लिखे जाते हैं उसके बाद में जब आपका नंबर आएगा आपको अंदर बुला लिया जाएगा बैठिए आप। पापा नंबर का जब तेरा नंबर आ जाएगा दवाई मिल जाएगी अभी सुकून से आराम से थोड़ा सा बैठ जाओ। लल्ला क्या हो ये मारेगा क्या। चिल्ला वाला तो चिल्ला अरे तेरे भी बड़े बात आती हो यहाँ के नंबर उन पर लगा हमारा। जवान मुंह को जान मुंह को निकल जाओगी तो कर है अभी बात लगा डॉक्टर साहब क्या हुआ पापा को परेशानी ज्यादा हो रही है। अरे सर आपको बताया तो है बड़े डॉक्टर हैं यहाँ नंबर लगकर ही दवाई मिलती है अगर आपको इतनी इमरजेंसी है तो 1 लाख रुपए जमा कर दो तुरंत इलाज हो जाएगा। पापा 1 लाख रुपए जमा करना कह रहे। अरे क्या कह रहा लल्ला तू क्या कह रहा। इमरजेंसी फीस 2-4 रुपए मांग रहा कि 1 लाख रुपए हो 1 लाख। जिसका मन है तो बता रहा तो फोन कर जल्दी। हेलो हाँ रे पापा अरे कहाँ खड़ी हो। मैं घर। अरे लल्ला ये ना है अपना डॉक्टर फड्डा का हॉस्पिटल। हाँ डॉक्टर फड्डा ने फंडा कर दिया। 1 लाख रुपए मदद की नीचे मांगा जल्दी लेकर आ 2-4 लाख रुपए जेब में गिर के जल्दी आ जा। मैं कहीं जा रहा। अरे लल्ला मैं जा रहा। अरे सर क्या हुआ अभी तुम्हारे पैसों का इंतजाम हुआ नहीं। वल्ला उन्हें तो लंबे ना फोन कर दो तो समझ चल तो ठीक है मत ले। अरे जल्दी कर। हेलो हाँ बाबा अरे कहाँ गए रे। मैं तो खेत पे बाबा तो क्या कर रहा। मैं तो पानी में ला रहा है। अरे एक काम कर खेत पे तू छोड़ दे 2-4 लाख रुपए जेब में गिर के यहाँ से डॉक्टर फड्डे के हॉस्पिटल पे। क्या होगा। डॉक्टर फड्डा ने फंडा कर दिया। जल्दी आ जा इमरजेंसी फीस मांग रहा। अच्छा हाँ 2-4 लाख रुपए जेब में गिर गया जल्दी। चलो आ लिया मैं। हाँ जल्दी आ। ठीक अरे क्या हुआ भाई जल्दी करवाओ मरीजों की लाइन लगी क्या है। हुआ। अल्लाह तो है आने में टाइम चाहिए। तो चला जाओ। चेक लाओ चेक। हाँ चेक ले लो जल्दी मैं जा रहा हूँ। लो जल्दी फीस करो जल्दी से करो पापा को एडमिट करो जल्दी। नाम बताइए मरीज का। शफाकत हुसैन एज 73 कहाँ से है। भोका लेडी। क्या तुम्हारा इत्तेफाक नहीं है पहले ये बताओ कहाँ से हो। पापा बलवन लेडी से है मैं भोका लेडी से रिश्तेदार है। मेरे लिखा जाएगा ना। मरीज का नाम लिखा जाएगा। हाँ पापा जी लिख आओ। बलवन लेडी। अच्छा आप बैठिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब एक इमरजेंसी मरीज है उन्होंने फीस पे कर दी है आप बताइए कैसे करना है। उनसे बोलो कि थोड़ा वेट करें मैं पेशेंट देख रहा हूँ। ऑफिस क्या हुआ डॉक्टर साहब। सर थोड़ा वेट कीजिए डॉक्टर साहब अभी आपको बुलाएंगे। पापा थोड़ी देर और। अरे 1 लाख रुपए क्या करेगा 1 लाख रुपए अभी वेट करना पड़ेगा क्या। आइए आपका नंबर आ गया। नेक्स्ट पेशेंट शफाकत हुसैन। बैठिए पापा जी यहाँ बैठो। क्या नाम है शफाकत हुसैन। जी शफाकत हुसैन नाम। इस एज 73। जी कहाँ से भोका लेडी आई थी। बलवन लेडी। बलवन लेडी। जी ये आपके हाथ में क्या है। मुझे दवाई है डॉक्टरों ने इकट्ठे कर रखी 10 डॉक्टर से दौरे लेगा पहले चलेगा आगे दौरे दिए। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज प्लीज।
मैं क्या क्या भोग रहा लो तो बता दे, हमारे को कुछ पर लेना पड़ेगा। आप जरा तमीज से बात करिए, यहाँ और भी पेशेंट बैठे हैं, मुझे उनका भी ट्रीटमेंट करना है। हाँ तो ऐसे बोलना ही नहीं। दवाई चेक करके बता दूँ आपकी दवाई। आपकी मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है, अभी इनसे कोई होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं फिर है। क्या क्या मुझको जाना? हिंदी में बोलो डॉक्टर साहब, हिंदी में बात करो, इन्हें समझ में मैं कह रहा हूँ ये जो आपकी दवाइयाँ हैं अब आपके मर्ज में काम नहीं आएंगी, इसलिए आपको दोबारा दवाई लेनी पड़ेगी। और आपके पेशेंट की कंडीशन भी ऐसी नहीं लग रही। क्या आपने देख लो क्या करना है। कर दिए? क्या करना है? 1 लाख रुपए फीस पे कर दिया आपने? बिल्कुल जी, 1 लाख रुपए फीस पे करके आए। आपका पहले ट्रीटमेंट होगा, यानी आपके सारा चेकअप होगा। चेकअप के बाद आपकी पूरी बॉडी देखी जाएगी कि उसमें क्या है, उसकी जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको क्या मर्ज है। ओके, मैं अपने कंपाउंडर को बुलाता हूँ। मिस्टर मोहसिन CMSCD, प्लीज कम। यस सर। ये पेशेंट है, इनकी फी भी पे हो चुकी है। आप एक काम करिए, इनको 99 रूम में ले जाइए और इनकी पूरी बॉडी का चेकअप करिए और सारी रिपोर्ट मुझे ला के दीजिए। ओके सर। क्विक फास्ट। आ जाओ, वापस आ जाओ, चेकअप होगा तुम्हारा। हाँ, बैठ जाओ। आ जाओ, वापस आ जाओ, होगा तुम्हारा चेकअप। हाँ, बैठ जाओ। थोड़ी देर बैठ। अभी आ रही रिपोर्ट, बस बात कर रहा मैं। क्या हुआ जी? रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, बैठ जाइए आप। जैसी रिपोर्ट आ जाएगी हम आपको खबर कर देंगे। बाबा रिपोर्ट आ रही है, मैं थोड़ा टाइम लग रहा। लल्ला रिपोर्ट बनवाता रहेगा, दवाई भी दिलवा के हमारे आगे ही। आगे दिलवाऊंगा, हाँ, जल्दी दवाई का इंतजाम करवा। थोड़ा सा सुकून चला मेरा अपने सामने। क्या हुआ? बैठिए, आपको बता दी जाएगा। जैसी रिपोर्ट आएगी मैं आपको बता दूँ। थोड़ा सा सुकून। मिस्टर शफाकत हुसैन, आइए, आपकी रिपोर्ट आ चुकी है। मैं एक बार डॉक्टर साहब को दिखा दूं, अभी आपको बता दूं। डॉक्टर साहब, यस। ये जो इमरजेंसी पेशेंट आया था उनकी रिपोर्ट है, ये देख लीजिए। ओके, आप जाओ, पेशेंट की फैमिली को बुला कर लाओ। ओके सर, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं अंदर। जी देखिए सर, ये आपके पेशेंट की रिपोर्ट है और देखिए उनका जो हार्ट है उसमें स्वेलिंग आ गई है। स्वेलिंग आने की वजह से उनका जो हार्ट है 95% काम करना बंद कर दिया है। 5% है चांसेस कि वो काम कर रहा है, बट यू नो कि अगर 5% वो काम कर रहा है तो चांसेस बचने के नहीं है पेशेंट की। इसलिए पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको इमरजेंसी एडमिट करना पड़ेगा ICU में। इसको कर दो डॉक्टर साहब। इसके लिए आपको 5 लाख का बिल पे करना पड़ेगा पहले काउंटर। कैन यू मैनेज? मैनेजमेंट तो बाप भाई बताओगा, उसे देख के बताओ। पापा 5 लाख मांग रहे। अभी तो 1 लाख रुपए तो 5 लाख जमा करने पड़ेंगे, वरना तो तेरा काम। 5 लाख रुपए है, 5 लाख जमीन बेचनी डॉक्टर पड़ेगी। साहब मना कर रहे हैं, छोड़ो। ओके, आप यहाँ बैठिए, मैं डॉक्टर साहब से पूछ कर आता हूँ। जल्दी करो, जल्दी, सांस आने मुश्किल हो रहा। डॉक्टर साहब, वो जो इमरजेंसी पेशेंट था उनके 5 लाख रुपए जमा हो चुके हैं, फीस पे हो चुकी है। आप बताइए कैसा करना है। ओके, एक काम करिए, उनको जल्द से जल्द वहाँ पे लेके जाइए प्लीज़। क्यों फास्ट ICU में उनको भर्ती करिए और उसके बाद एडमिट करने के बाद ऑक्सीजन लगाओ। CA NCR NPR को उनको इंजेक्शन लगाओ। ओके प्लीज़, उसके बाद उसके बाद आपको ऑक्सीजन ज़रूर लगाना है, याद रहे, ठीक है? आई विल कम बैक। पापा आ जाओ, भर्ती करना पड़ेगा तुम्हें। एक मिनट। लाओ, इसे लगे
बहुत ज़्यादा खराब है, इन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया है। आप बाहर वेट कीजिए, आप बाहर वेट कीजिए, आईसीयू में किसी को आने की इजाज़त नहीं है, आप बाहर वेट कीजिए। सर वो आईसीयू में भर्ती कर दिया होंगे, इंजेक्शन वगैरह लगा दिया है, आप आइए एक बार तो चेक तो लगाओ, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। लगाइए पेशेंट के इंजेक्शन लगाओ, बहुत बोल रहा है, आवाज़ नहीं आ रही यार कुछ। प्लीज हरी अप डॉक्टर। लेकिन ये का भरो और जल्दी दूसरी आर्म में लगाओ प्लीज, क्विक फास्ट। इसको डस्टबिन करो। ये लीजिए सर। बाबा कदम प्लीज कम फास्ट। ठीक है, उसको देख लो। पापा से मिलना है, मैं पापा को देखो बहुत दिन हो गया। मैं अभी मिल लियो, अभी मिल लियो। पापा को दवाई दिलवाने लाए या किडनैप करवाने लाए? भैया आईसीयू में है, तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अरे बुढ़े चिंता मारना है, लग नहीं होती। अभी रुक जा, मैं बात कर रहा। तो भैया घर वाले हैं इनके। अच्छा तो उनसे कहिए वेट करें थोड़ा सा, ये आईसीयू यहाँ पर दिखाने की इजाज़त नहीं होती, 9 से 12 का टाइम है, उसी के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। आप बैठिए। ये 9 से 12 का टाइम है। अब ठीक रहेगा तो तबीयत ज़्यादा जल्दी करवा दे। अभी बस 2 मिनट रुक जा, बात कर रहा हूँ। चल बैठ जा भैया। क्या हुआ डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अच्छा अगर ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो एक काम कीजिए, मैं डॉक्टर साहब से बात कर आता हूँ। ठीक है बाबा। डॉक्टर साहब साहब जी बोलिए। पेशेंट के घर वाले आए हैं और वो जिद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मिलने की, बताइए कैसे कर रहे हैं। परेशान हो रही चाचा। अरे बात करने तो यार डॉक्टर से। डॉक्टर की कंडीशन आप मुझे देख के बताओ क्या है आईसीयू में, और टेल मी अबाउट बुढ़ा मर गया। सर मरीज की तो डेथ हो चुकी है, बताइए कैसे करना है। यस सर। एक काम करिए कि तो हमें और ज़्यादा पैसे खींचना है इससे, अभी तो इसने बहुत कम पैसे दिए हैं, इसलिए और ज़्यादा पैसे खींच रहे तो उसको वेंटिलेटर पर लगाना पड़ेगा। आप उसको वेंटिलेटर पर लगा दें। चाचा अभी आए ना कंपाउंडर, अभी आप मिल लीजिए, रुक जा, आने बात करेंगे, अभी बात करेंगे, रुक जा। आईसीयू में है पापा। आईसीयू में भी दिखवा दे। आने रुक जा। डॉक्टर साहब क्या बात है, इन्हें मिलवा दो। आइए अब मरीज से मिल लीजिए। आज मिलवाओ। पापा पापा तू तो नहीं करा सही है पापा। कुछ नहीं है तो ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए, आप डॉक्टर साहब से बात कर आता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब से बात कर आता हूँ। डॉक्टर साहब वाले बजाने को तैयार है, वेट कराओ, मैं तो पेशेंट देख रहा हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंट देख रहे हो। अरे वेट पेट कुछ नहीं है, पापा की बात है, पापा मर गया, हमारा सारी जिंदगी खराब है। डॉक्टर साहब मुझे तो मामला खराब लग रहा, देख ठीक लो। है, आप पेशेंट की फैमिली को मेरे पास भेज दीजिए। चाहिए सर बुला रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब क्या बात है, पापा को कैसे मार दिया तुमने? प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। अरे माइंड पाइंड कुछ नहीं यार, कि पापा मार दिया। पेशेंट बैठे हैं। अरे पेशेंट का हम क्या करें, तूने भी मारेगा और उसे भी मार दिया।
अरे पता नहीं क्या कह रहा, 1 लाख रुपए पहले तूने वैसे ले लिए, इमरजेंसी फीस 5 लाख रुपए फिर ले लिए, 6 लाख रुपए लेकर तूने बापा मार दिया। देखिए सर, योर पेशेंट ही इज नो मोर, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे और मरने से पहले उनको वेंटिलेटर पे लगाया गया, तो इसके आपको 5 लाख रुपए और फी पे करना। 5 लाख? 5 लाख वो लेके चल ले, कहाँ लगा डाला? अरे चल ले बस, अब 6 लाख तो गए, क्या कर सके? अरे लेके जाओ, हमारे अपने ले जाओ, कैसा करेगा? अब इनकी फीस पे होनी बाकी है, इसकी बस क्या फीस फीस होनी बाकी है? फीस वो डॉक्टर साहब बताएंगे आपको, लेकिन अभी फीस पे नहीं हुई है डॉक्टर साहब। डेड बॉडी आप तभी ले जा सकते हैं जब आप 5 लाख का बिल यहाँ पे करेंगे 5 लाख जमा कर रखे हो, कौन देगा? देखिए सर, हम इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, हमने वेंटिलेटर पे लगाया था मरने से पहले, जो अमेरिका से आया था, यहाँ से नहीं मंगाया गया था उसको। अमेरिका का नाम लेकर तुम हराम कमा रहे हो। हमारे तो मुकर्रिर हैं, हमारे जो उलमा है वो ये बताते हैं कि चीज आई डोंट केयर, मुझे नहीं लगता ये हराम है। अरे मुफ्ती साहब नाम मुझे कुछ लगता ही नहीं हराम का। अभी मैं नहीं, सब लोग ऐसे ही करते हैं। जो मेरे यहाँ मेकर्स हैं वो काम करते हैं, बल्कि पढ़ाई पे भी इतना खर्चा लगा। मिंबरों पे बैठ के हमारे उलमा ये बता रहे कि वो हराम है। आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता हराम है क्या है। मैं तो बल्कि ऐसा करता हूँ, अगर कोई पेशेंट मर जाता है रुक जा, पहले इससे बात करन दे। अगर ऐसी बात है तो आप अपने इमाम को बुला लें। रुक जाओ, मैं इमाम साहब को बुला रहा हूँ। हेलो, आप कहाँ पर हैं? अगर मुलाकात करनी है आप तशरीफ ले आए, डॉक्टर साहब से मुलाकात करनी है। आइए डॉक्टर, आइए देखिए डॉक्टर, ये बता रहे हैं कि हमारे मस्जिद के इमाम हैं, इमाम साहब, उन्होंने रामलीला ग्राउंड में जो ऑल इंडिया प्रोग्राम था हलाल और हराम के अबाउट कोई स्पीच दी थी, बट आई डोंट नो वो क्या था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि मैं हराम कमा रहा हूँ। आप प्लीज कुछ रहनुमाई करें। देखिए, मैंने ऑल इंडिया प्रोग्राम के अंदर वहाँ पर हलाल और हराम के अंदर तनाज़ुर हो रहा था, इख्तिलाफ हो रहा था, वहाँ पर इख्तिलाफ हो रहा था, तो मैंने वहाँ पर जाकर के बयान किया और वहाँ का जो इख्तिलाफ था वो ख़त्म हो गया। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे नहीं, इन सब लोगों को और जो मेरे यहाँ स्टाफ काम करते हैं, आप सबको मुतवज्जे करके बताएं और उसके अबाउट स्पीच दें। जी बिल्कुल। खादिम मोहम्मद अहमद जी इलाहा हुन्ना बिस्रा। मेरी वो वाली किताब लाओ जो मैंने हज के मौके पर सफ़र करते हुए बहरी जहाज़ के अंदर तसनीफ़ की थी, जिसका नाम हलाल और हराम का तोहफ़ा है। उसे डेस्क पर रख दीजिए। इसमें आवाज़ थोड़ी कम आई होगी। ये बातें तमाम डॉक्टरों को जानना ज़रूरी है, चाहे वो सीखने वाले हों या इलाज मुआवजा कर रहे हों। देखिए, पहली बात तो ये है कि बगैर तिब्बी महारत और फन को सीखना है